This was my first paper of semester 1, like the start of my journey, the first year, the first semester. The paper was. Hello everyone, good morning. So actually today I have paper of DSA, my first paper of Sem 1, and I am tensed because I don't know, I am tensed because I haven't done some questions that I should. So I don't know how will be the paper, but let's hope जितना हुआ है उतना आ जाए. And you know that I haven't revised what I had done, and मुझे ऐसा लग रहा है मेरा दिमाग पूरा खाली, मुझे कुछ नहीं आता, and that's why I am more stressed. So there will be a time when we will be talking about what to do before exam and not to do those stuff, because that is very important. For now I'm really tensed, like seriously. Please hope for the best that it goes well. Whatever it is, I will come and inform you all. After all, we are just giving it for the first time, and I'll let you know what giving it for the first time is like. In the sense, what is the reason behind saying for the first time, because we have given exams back then, but there is a reason. So yeah, for now I'll revise something. Okay, I'm really scared, please pray. Bye. So hello everyone, we are going to talk about our exam 1. There is already a review I give after an exam, but still here I want to address that preparation matters the most before the examination, and also other than examination you need to prepare yourself. Whatever subject you are learning, you should understand, right? So the first thing that you need to do is refer your notes. Make your own notes if not, but don't do it on the last moment, like when you're studying at the night time before the exam. Like if exam is in the morning and you are making notes at the night thinking that you are creating notes and you'll get everything into your mind, that is not going to work, because notes making take times, it consumes times, and इट विल नॉट रियली हेल्प यू एट दैट मोमेंट, बिकॉज नोट्स बनाने के लिए हमें उस टॉपिक को समझना होता है, देन हम उसको हमारे वर्ड्स में, हमारे चार्ट्स में कन्वर्ट करके, फ्लो चार्ट्स में हमारी भाषा में उसको कुछ अलग सा ही लॉजिक, इलॉजिकल लॉजिक लगा के हम उसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जो हम एन मोमेंट पे नहीं कर सकते. तो यहाँ पे वो अवॉइड करना है. 2000 years later. So, hello guys, we are back from college, and Python. मेरी मम्मी जी पूछ रही थी कि कल, हाँ जी, क्या? Okay. So I know you guys want to know what the paper was like. Shit. Sorry. Sorry, I am. मेरा मुंह देख के जज मत करना, बिकॉज मुझे वैसा एक्ट करना पड़ रहा था, बिकॉज this was my first paper of semester 1, like the start of my journey, the first year, the first semester. The paper was so nice. The paper was so nice. I'm so happy. कुछ एक्टिंग नहीं है भाई, मुझसे नहीं होती एक्टिंग. मेरा पेपर अच्छा गया तो अच्छा गया in the sense I will pass. I know that's funny, but I'm just happy. Happy in the sense that I will pass. तो
जब पहला पेपर अच्छा गया तो दूसरा पेपर भी अच्छा जाएगा, उसके लिए हमें फिर से मेहनत करनी है। तो सेकंड पेपर की मेहनत शुरू करनी है वापस। I'm so tired. Let's go! Discuss the paper very soon, that what mistakes I've done and what I have to focus on and stuff and stuff and stuff, so that you also can do better and avoid the mistakes that I have done, because I have done mistakes that you don't have to. So yeah, keep waiting for the video that we are going to make on how to write your exams, what to do in the last hours, and stuff like that. You know, I'm happy. Sorry. Hello, and I am back with the good news that I am really positive about my next paper, my second paper. मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पर मुझे कॉन्फिडेंस है कि अच्छा जाएगा या फिर मैं अच्छा करूँगी. So let's keep grinding. सो वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम 2 सेशन. यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि चलो प्रिपरेशन का तो ओके, हमें नोट्स रेफ़र करने हैं जो पहले बनाए हैं, और हम अभी उसको रिवाइज़ करके चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अपने दिमाग में रखेंगे. नेक्स्ट थिंग, हमें ये नहीं सोचना है कि यार अगर केटी लग गई तो क्या, अगर ये हो गया तो क्या. वो टाइम पे हमें जितना हमसे प्रिपेयर हो सके उतना करना है. अब करना क्या है कि हमें चीज़ों को डिवाइड करना है, ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन और कम वेटेज वाले क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट ऑफ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है हमें लेक्चर में ध्यान देना है. जब मैम बोलती है हाँ ये क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको ऑन द स्पॉट मार्क कर लो, और फिर एग्ज़ाम के टाइम आप उस चीज़ को पढ़ के भी पास हो सकते हो. ऐसी भी चीज़ें हमें टीचर्स बताते हैं, एंड वी नो दैट टीचर्स डोंट वांट अस टू फेल एंड हैव किटीज एंड डिफरेंट थिंग. तो ये चीज़ है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, और टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सोचते हो कि अगर ये हो गया या वो हो गया, क्योंकि वो टाइम पे अगर हम प्रिपेयर कर लेंगे तो देन फेल होता हुआ एग्ज़ाम भी हम पास कर जाते हैं. तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है. So we are back from college. आज था हमारा सेकेंड पेपर. It was okay. I will pass. That's the thing. I'm not happy because मुझे सब आता था. आई वॉज लाइक ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, एंड लिटरली मेरा आधा पेपर छूट गया बिकॉज ऑफ टाइम. ठीक है, तो या आई एम नॉट हैप्पी. आई वॉन्टेड टू कम्प्लीट द पेपर, बट पासिंग एंड देन काफ़ी सारे मिस्टेक्स हुए जो मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सारे एग्ज़ाम्स होने के बाद. इट वॉज ओके. आई वॉज लाइक can do better, yaar. So that was the thing. That's it. That is the review. यहाँ पे मैंने ले लिया था थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने प्रिपेयर तो किया है, मतलब चीज़ें तो मैं कर रही हूँ, एफर्ट्स तो डाल रही हूँ, बट क्या वो कुछ हो रहा है या नहीं. तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, थोड़ा शांति खुद को दी, एंड देन वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करने की खुद को मोटिवेट किया. सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम 3 सेशन. यहाँ पे हम बात करने वाले नोट्स प्रिपेयर कर लिए. नोट्स प्रिपेयर कैसे करना है वो भी हमने सीख लिया. अब हमें ध्यान देना है कि हम पेपर में कैसे क्या लिखने वाले हैं. तो पेपर में फ़र्स्ट ऑफ मुझे वही चीज़ लिखनी है जो मैंने प्रिपेयर किया है. अगर मैं उससे एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने जाऊँगी तो शायद मैं कुछ गलत चीज़ें लिखूँ जो उससे रिलेवेंट नहीं है, और शायद जो मैंने लिखा है उसकी वजह से मेरे इररिलेवेंट आंसर की वजह से वो मिक्सअप होकर मेरे मार्क्स कम ना हो जाए. तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना प्रिपेयर किया है, वही मुझे लिखना है. तो अब मैंने जो प्रिपेयर किया है वो मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसका मुझे ध्यान रखना है, और वही जाके वहाँ पे आउटपुट देना है. इतना ध्यान में रखना है कि फर्स्ट मेरा टारगेट पास होने का है, और नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि अच्छे मार्क्स से पास होना है. तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. और हम मुझ जैसे कई बच्चे जो लास्ट मोमेंट पढ़ाई करते हैं, या फिर कई कंसेप्ट उनके दिमाग में होते हैं लेक्चर के टाइम, और एग्ज़ाम के टाइम वो रिवाइज़ कर लेते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ. तो ये चीज़ हम कर सकते हैं वो मोमेंट पे. एग्ज़ाम में हमें ये लिखना है कि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ऑब्वियसली, क्योंकि हमने प्रिपेयर उस हिसाब से किया है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है. हाँ, पता है टीका वीका दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या ही पेपर लिखा है.
पेपर अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ा था अच्छे से, बट वहाँ पे जाके सब उड़ गया। ठीक है, क्या मिस्टेक हुई, क्या हुई, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वो वीडियो तभी आएगा अगर मैं पास हुई सब में। तो मुझे सीरियसली पास होना है। अभी थोड़ा मूड ख़राब है, पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया। पता मतलब क्या लिखा मैंने, मुझे खुद को नहीं पता। बस मैं इतना प्रार्थना कर रही थी, इतना लिख दूँ जितना मैं लिख सकूँ, इन द सेंस पास हो जाऊँ। देखते हैं अभी क्या होता है। नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कल संडे है, तो कल छुट्टी है, तो बाय बाय। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम 4 सेशन। अब तक हमने बात की थी कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और फिर एग्ज़ाम में जाके हमें ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन लिखने हैं। दूसरी रही बात, हमें ये करना है कि हमें सारे अपने सप्लाइज़ लेके जाना है प्रॉपर। कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होने वाली है, किस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे पता होना चाहिए। अगर मुझे बोला है कि डिफाइन एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट या डायग्राम, और वहाँ पे जाके मैं ब्रीफ लिख रही हूँ, दैट इज़ नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मुझे वो चीज़ पे वहाँ पे ध्यान देना है कि किस चीज़ का कितना वेटेज है, और मुझे क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है, जिससे मेरे प्रॉपर मार्किंग सिस्टम में कोई एरर ना आए। देन रही बात दूसरी, हमें ये देखना है कि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने लायक है या नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं। एक मुझे थोड़ा आता है एंड एक मुझे पूरा आता है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं पहले वो नहीं लिखूँगी जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, मैं पहले वो लिखूँगी जो मुझे पूरा आता है। मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ, ताकि मेरे वहाँ पे मार्क्स गेन हो जाए, और पेपर चेकिंग के टाइम वो उस क्वेश्चन को अवॉइड ना कर दे, क्योंकि वो सेकेंड प्रायोरिटी है। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम 5 सेशन। यहाँ पे हम देखने वाले कि अगर मैं पेपर में ब्लैंक हो जाऊँ तो मैं क्या करूँ। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है, हम पूरा प्रिपेयर करके जाते हैं और हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, मतलब पूरा ही भूल जाते हैं, क्वेश्चन को देख के भूल जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं आता है। तो हमें सिर्फ आंखें बंद करनी है, सिर्फ रिवाइज़ करना है वो टॉपिक किससे रिलेटेड है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स, उसमें क्या पॉइंट्स है, सिर्फ उतना याद करना है। इफ़ वो मुझे याद नहीं आता है तो मुझे उसके रिलेटेड पॉइंट्स बनाने हैं एंड ओन वर्ड्स में लिखना है। दिस इज़ द सोल्यूशन। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम 6 सेशन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, चलो ये तो हो गई थियोरी की बात। यहाँ पे तो मैं कुछ भी बना के लिख भी दूँ, पर बात मैथ्स के पेपर की हो तो तब मैं क्या करूँ। तो डियर फ्रेंड, डियर क्लासमेट, डियर स्टूडेंट, आपको 1 नाइट तो मिलती है एटलीस्ट, या हाफ डे तो मिलता है, लाइक एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको मिलते हैं। वहाँ पे आपको सारे फार्मूलाज निकालने हैं, एंड येस, आपको कौन सा फार्मूला किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पे अप्लाई होता है और किस तरह से अप्लाई होता है, उसके कितने स्टेप्स हैं, वो सब आपको करना है। क्योंकि सारे सम्स आप ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस नहीं कर सकते उस टाइम पे, क्योंकि उसमें सब डिविजन्स भी बहुत सारे होते हैं उस टॉपिक के अंदर। तो आपको वहाँ पे फार्मूलाज को देखना है और टाइम लेना है उस सम को किस तरह से सॉल्व किया है देखने के लिए। एक बेसिक सम पकड़ना है जहाँ पे उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ है, एंड देन यू कैन ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन विद द सेम। वहाँ पे अगर 1-2 कंडीशन भी दी है तो देन यू कैन वर्क विद दैट ऑल्सो। तो ये सेम चीज़ सारे मैथ एग्ज़ाम में अप्लाई होगी। हेलो एवरीवन, आज मेरा मैथ्स का पेपर है। एक्चुअली कल भी मेरा एक मैथ्स का पेपर था, बट मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था कुछ, और मैं सिर्फ सो गई थी। तो मैंने सुबह उठ के थोड़ा प्रैक्टिस किया, बट आई एम कॉन्फिडेंट विथ इट कि मैं पास हो सकती हूँ। एंड आज भी मैथ्स का पेपर है, स्टैटिस्टिक्स का। सो कल थोड़ी प्रैक्टिस की थी मैंने, तो आई होप आई गिव इट नाइस। थोड़ा सा मेरा बाकी है, दैट आई विल कवर अप। थोड़ा एक घंटा है, तो आई मीन 1.5 आवर समथिंग, तो उसमें मैं वो कवर कर लूँगी। या ओके। तो यहाँ पे मेरा पेपर इतना खास गया नहीं, तो मुझे मन नहीं किया बात करने का और रिव्यू के लिए भी टाइम नहीं मिला। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्ज़ाम 7 सेशन। तो
जब हमारा टाइम टेबल थोड़ा लेंदी होता है, उसमें डेज़ के ब्रेक होते हैं या फिर नहीं भी होते और कांस्टेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं डे आफ्टर डे, तो हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं और हम गिव अप करने लगते हैं कि चल यार जो भी एग्ज़ाम आएगा जैसा भी गया बस चला जाए, ऐसा लगता है। पर यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं करनी है। इतना टाइम जो हमने दिया, इतने सारे जो लेक्चर्स अटेंड किए, जो भी हमारा दिमाग वहाँ पे हमने लगाया या नहीं भी लगाया, तो उसको हमें वर्थ करना है वहाँ पे, उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। ये ध्यान में रख के हमें लास्ट पेपर तक सेम एनर्जी कांस्टेंट रखनी है। ये नहीं कि चल लास्ट पेपर है, ठीक है, नहीं गया बराबर तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं सोचना है हमें। हमें सेम फोकस जो हमने स्टार्टिंग के पेपर से किया था वो लास्ट के पेपर तक करना है। कई बार हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स भी बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं या फर्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि फेवरेट जैसी चीज़ आपको एग्ज़ामिनेशन के टाइम थोड़ी सी दिमाग से निकालनी है और थोड़ी सी रखनी है, क्योंकि जब फेवरेट ये वर्ड आ जाता है तो हम उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। तो वो अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं तो वेल एंड गुड, देयर इज़ नो इशू विद दैट, बट वहाँ पे हमने ये नहीं भूलना है कि बाकी के सब्जेक्ट्स को भी हमें मेंटेन करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है बस। एवरीवन, ये शाम के 8:30 बज रहे हैं, बट मुझे अभी याद आया कि मुझे रिव्यू देना था कि लास्ट का मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। लास्ट का एग्ज़ाम मेरा एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली वो बहुत लेंदी था, बहुत बड़ा था, बट पासिंग मार्क्स जितना लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई विल गेट इट। बट मुझे बहुत कुछ, मतलब पूरा पेपर आता था बट आधा पेपर ही मेरा कंप्लीट हुआ, सो इट इज़ लाइक कंसर्निंग। और मैं अभी थोड़ा सा डर रही हूँ कि अगर मार्क्स नहीं दिए तो, बट ओके, क्योंकि मेरा कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, so I hope I'll get, yeah, that's it. So my last exam was very okay and I'll pass, that's it. Hey everyone, this is me, Anonymous. तो मैं ये वीडियो बहुत लेट एडिट कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में जम्बल अप हो गई थी, तो मैंने तभी तक के लिए शॉर्ट्स अपलोड करने स्टार्ट किए थे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आके चीज़ें होके टाइम हो चुका है, 1 महीना हो चुका है एंड थोड़ा डिले इसलिए हुआ कि मैंने ऐसा सोचा था जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आता है तब तक मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, बिकॉज इट इज़ एन एडवाइस, इट इज़ एन सजेशन टू स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर देयर एग्ज़ाम राइट नाउ। ये यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि बीच में जो ब्रेक्स आए हैं जहाँ पे कोरोना था या फिर पेंडेमिक की वजह से बच्चों का जो स्टडी का जो रिदम है या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, जो भी है वो थोड़ा हिल गया था। तो यहाँ पे उनको सजेशन देना, एडवाइस देना इम्पॉर्टेंट बनता है। और बच्चों के यानी स्टूडेंट्स के, आई एम ऑल्सो अ बच्ची ओनली, तो स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उनको भी मोटिवेट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके सराउंडिंग में कोई स्टूडेंट है जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाला है, उनको डराओ मत। बोर्ड एग्ज़ाम गोज़ रियली स्मूथ इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है स्टूडेंट्स, प्रिपेयर योर सेल्फ प्रॉपरली एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, शेयर इट विथ someone who is going for their boards and also is a first year, second year, third year student if they need this video. So I'm really thankful for completing 180 subscribers and our target for December is 200. So hopefully before 31st, today is 30th and tomorrow is 31st. So before New Year we need to complete 200 subscriber, 20 more, 20 more, and we can hit our target. And I am thankful for everything and I hope this video will reach out to you properly. अगर मैंने कोई भी गलती की है, I am really sorry for this. And that's it. Happy New Year, Merry Christmas, and see you. Take care. Tata. Bye bye. One exam and I have not got any KT. Happy New Year. Bye bye.